So now we'll discuss about the versatile nature of the carbon. So we have seen how the bond formation, okay, for different molecules के लिए हम लोगों ने भी देख लिया है. Right now we'll see how versatile nature of the carbon. So we know that the carbon, okay, the human or we are made up of the carbon compound. Okay, हमारी जो body है वो भी carbon compound से बनी हुई है. Okay, so carbon bonded with carbon, okay, carbon has a unique ability to form a bond with other atom carbon, giving rise to a large molecules. This property is called as the catenation. Okay, क्या होता है? कार्बन बॉन्ड करता है दूसरे कार्बन के साथ. अभी देखा हम लोगों ने कार्बन बॉन्डेड विथ अदर कार्बन, अदर कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ वो बॉन्ड करता है. ओके, हम लोग देखेंगे इसके लिए एग्जांपल्स. एंड दिस formation of bond with one we can say one molecule of carbon to different molecule of the carbon. Okay, that formation is called as catenation. इसको बोलते हैं catenation. Okay, catenation means what? It is the bond between the two carbon atoms बोल सकते हैं, two carbon molecules. Okay, so carbon has a unique ability to form a bonds with other atom of carbon. Okay, carbon क्या करता है? एक atom दूसरे atom के साथ bond formation करता है. Okay, so that property is called as the catenation. So compound may have long chain of the carbon, branch chain of the carbon. So what is this chain that we will study? Okay, ये हम लोग देखेंगे. Carbon atom may be linked by a single, double or triple bond. तो इनमें क्या हो सकता है? कार्बन में जो बॉन्ड है, ओके, कार्बन में जो बॉन्ड है फॉर्म हो सकता है. ओके, कार्बन जो है वो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. ओके, कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? Either it can form a single bond, either it can form a double bond, either it can form a triple bond. So ये versatile nature. That's why we are saying the carbon is having versatile nature. Okay. So carbon bonded with carbon catenation देख लिया हम लोगों ने. Long chain of branch chain. Okay. तो ये it can form a long chain of carbon compound. ये क्या है चेन हम लोग देखने वाले आज टॉपिक में. Long chain of the carbon compound देख सकते हैं हम लोग. Then branch, okay, branch chain of carbon compound, branch chain of carbon compound. Okay, then it is forming a single bond, double bond or triple bond. Okay, then द सिंगल बॉन्ड जो फॉर्म करता है, ओके, जो सिंगल बॉन्ड जो फॉर्म करता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड. ओके, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड कंपाउंड. यहाँ पे लिखता हूँ दो आर फॉर्मिंग कार्बन, यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड. अगर ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ओके, अगर ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड. दैट इज कॉल्ड एज द, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड कंपाउंड. वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज द सैचुरेटेड कंपाउंड. ओके, अगर वो डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा होगा, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर वो फॉर्म कर रहा है, that is called as unsaturated. यानी वो unsaturated है, unsaturated compound उसको. Okay, so we'll see what is the meaning of it. Okay, for examples देखने वाले हम लोग सारे. Okay, so that's why this carbon is called as the versatile nature. Okay, आप देख सकते हो carbon can bond with another carbon atom. Okay, and this process of bonding between one carbon to another carbon is called as a catenation. ये याद रखो ये वाला word catenation. It is forming a bond of one carbon atom to the another carbon atom. Then carbon can form a bond, single bond, double bond or triple bond. ये फॉर्म कर सकता है. जब ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड. बराबर है, इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड. और जब ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है तब उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ओके, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, unsaturated carbon compound. Okay, so it can form a long chain of carbon, it can form a branch chain of carbon. So carbon bond is very strong and stable. Okay, so carbon bond is carbon bond, कार्बन का जो बॉन्ड होता है इट इज वेरी स्टेबल. ओके, इट इज वेरी स्टेबल. कार्बन में जो बॉन्ड फॉर्म होता है दैट इज वेरी स्टेबल. ओके, एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग. Okay, that's why we are saying it is having a versatile nature of
of the carbon and can bond with four other atoms. क्योंकि हमें पता है कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, फोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. So it is having four number of valence electrons, so it can bond with other four atoms. So it can bond with four other atoms. It can bond with four other atoms. It can bond with four other atoms. Okay. So that's why the nature of carbon is known as versatile nature of the carbon. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कार्बन क्या है, versatile nature का है, because of all these parameters. Okay. तो जो पूरा पैराग्राफ लिखा है उसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, चाहे तो उसका स्नैपशॉट आप ले सकते हो, एग्जामिनेशन में काम में आएगा. अगर क्वेश्चन आया व्हाई द कार्बन इज शोइंग वर्सेटाइल नेचर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज़ कार्बन कार्बन व्हेन इट इज बॉन्डेड, okay, so that bond is called as a catenation, that is called as a catenation. Then carbon bond कैसे कैसे बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, it can form a single bond, it can form a double bond and it can form a triple bond. If it is forming a single bond, that is called as a saturated carbon compound, that is called as a saturated carbon compound. And if it is forming double or triple bond, it is called as a unsaturated carbon compound. Okay, so it can also form a long chain of the carbon, it can form the branched chain. So long chain and what is a branch chain, that we are going to study in a further topic. हम लोग आगे वाले टॉपिक में देखने वाले थे वो long chain और branch chain कैसे फॉर्म करता है. Okay, and then carbon carbon can जो बॉन्ड है वो क्या है, it is very stable and it is very strong. It is very strong and as well as it is very stable है and can bond this carbon, it can bond with four other atoms. ये क्या कर सकता है, फोर दूसरे डिफरेंट एटम से ये बॉन्ड कर सकता है. And that's why we are saying it is having very versatile nature of the carbon. It is having very versatile nature of the carbon. So now we'll see what is saturated and unsaturated carbon compound. देखेंगे हम लोग. Okay, what is saturated and unsaturated carbon compound? Okay, so we have already written what is the meaning of saturated compound, saturated carbon compound. If it is forming a single bond. Okay, you have to remember this. Okay, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को. If it is forming a single bond. Okay, single bond अगर form करता है, that is called as a saturated carbon compound. And if it is forming double or triple bond, okay, with the different atoms, it is called as an unsaturated compound. So now we'll discuss about the saturated and unsaturated compounds. So saturated and unsaturated, saturated and unsaturated, saturated and unsaturated carbon compound. So we will understand this with the help of examples. Okay, different structures. So we have already seen the structure of methane. Okay, another compound formed by between this carbon and hydrogen is ethane. Okay, ethane देखेंगे हम लोग ethane का. So ethane is the formula of ethane. Okay, the formula of ethane is C2H6. फॉर्मूला है C2 and H6. C2 कार्बन के कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स है, दो एटम्स है. ओके, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 है. इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल कार्बन कंपाउंड, ओके, द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन एटम टुगेदर विद द बॉन्ड. ओके, बॉन्ड कैसे हमें बनाना है यहाँ पे वो देखेंगे हम लोग. ओके, कार्बन के कितने हैं, दो है. ओके, कार्बन में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो इट इज हैविंग 1 2 3 4 1 2 3 4 5. ओके, कितने नंबर है कार्बन के, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. ओके, इट इज हैविंग 4. कार्बन में लिखता हूं कार्बन, कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन्स एट आउटर शेल. बराबर, आउटर शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन तो हमें पता है सिंगल ही है. बराबर, so now we'll draw it carbon. डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे पहले. सबसे पहले हम लोग इसका डॉट या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. ओके, डॉट या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. देन वी विल इजीली अंडरस्टैंड इट. ओके, हाउ द बॉन्ड फॉर्मेशन. बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें डॉट या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर
So saturated and unsaturated compounds we are studying ethane. कार्बन के कितने एटम्स हैं? दो, 1 and here it is 2. ओके, दो है यहाँ पे। तो कितने हैं इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन्स एट आउटर मोस्ट शेल। तो 1 2 3 ओके एंड 4 ये हो गया। ओके, कार्बन के लिए हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स एट आउटर मोस्ट शेल। ओके, समझ में आया? इस कार्बन के लिए 4 1 2 3 एंड 4। लुक एट दिस, दोनों भी एटम्स क्या है? कार्बन है। दैट्स व्हाई आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद द क्रॉस स्ट्रक्चर। क्रॉस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये देखो 1 2 3 4 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर दिस कार्बन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन कर सकते हैं। ये देखो, इस कार्बन के साथ एक पेयर कर लेंगे हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ इस साइड में एक हाइड्रोजन पेयर कर लेंगे, इस कार्बन को हम लोग इस एक हाइड्रोजन यहाँ पे पेयर कर लेंगे। ये हो गए 3। सेम उस साइड में करेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे पेयर, एक हाइड्रोजन यहाँ पे पेयर, एक हाइड्रोजन का पेयर यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का पेयर यहाँ पे, एक हाइड्रोजन का पेयर यहाँ पे एंड एक हाइड्रोजन का पेयर यहाँ पे। देखो ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर। इसमें भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो, तो आई हैव रिप्रेजेंटेड हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किए। तो देखो पहले मैं हाइड्रोजन को कंप्लीट कर लेता हूं। ये हो गया, ये हाइड्रोजन को कंप्लीट, ये हो गया हाइड्रोजन कंप्लीट, ये हो गया हाइड्रोजन पेयरिंग कर लेते हैं। ओके, पेयरिंग कर लेते हैं एंड उसी से हमें बॉन्ड फॉर्मेशन समझ में आ जाता है। ये हो गया पेयर। ये कार्बन के लिए देखो 1 2 3 4 उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लास्ट चेन में। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने, ऑक्टेट कंप्लीट के लिए क्या चाहिए उसको? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या करेगा ये? देखो एक यहां से लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देखो यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, ये ऐसे ड्रॉ करता हूं, इसको ये हो गया 8। लुक एट दिस, इस कार्बन एटम के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट उसका हो गया कंप्लीट। इस कार्बन एटम के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इसका भी ऑक्टेट हम लोग करते हैं अभी कंप्लीट। चेक करो, हो गया कंप्लीट। इस कार्बन का भी हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन का भी हो गया। सो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या क्या देखा हम लोगों ने? इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया कार्बन के साथ। ओके, सो ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर शेयरिंग देयर 1 इलेक्ट्रॉन्स टू द कार्बन एटम, and these two carbon atoms are sharing their 1 electrons to the all hydrogen atoms respectively। ये बराबर शेयर कर रहे हैं। सो हम लोग जो बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे देख सकते हैं? ये देखो ये कार्बन है। ओके, और यहाँ पे एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक कार्बन एटम है। देखो दे आर शेयरिंग देयर 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये कार्बन एक अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को शेयर कर रहा है, बराबर है। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। So with the help of this cross and dot structure, you will be very much able to draw its bond structure. Bond उसका जो bonding है, bond structure आप easily draw कर सकते हो like this. Okay. So हाइड्रोजन ये देखो इसके साथ एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ भी एक सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ भी एक सिंगल बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन के साथ भी एक सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। यू लुक एट दिस, कार्बन के कितने एटम्स हो गए? कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? दो हो गए, 1 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गया कंप्लीट। ओके, सो दिस इज द फार्मूला ऑफ ईथेन। कौन सी बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है ये वाला? इट इज फॉर्मिंग, ये देखो सारे इसमें क्या हो रहे हैं? इट इज फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड। ओके, कार्बन कार्बन के बीच में, ओके, और बाकी के बीच में क्या कर रहा है? ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? क्या है? सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है? इट इज फॉर्मिंग saturated carbon compound. It is forming saturated carbon compound. ये क्या फॉर्म कर रहा है? Saturated carbon compound फॉर्म कर रहा है। ओके, सो स्ट्रक्चर ये जो है हमने ड्रॉ कर लिया है। ओके, सो इट इज फॉर्मिंग अ सैचुरेटेड, बिकॉज वी नो दैट सिंगल बॉन्ड जहां पे भी रहता है वो क्या है? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। ओके, नाउ
We will draw for a different. Okay, दूसरे इसके लिए हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे. Can you draw the structure of propane which has the molecular formula C3H8? ड्रॉ कर सकते हो क्या? बॉन्डिंग उसमें डायरेक्टली बॉन्डिंग ड्रॉ कर सकते हो क्या C3H8 के लिए? ओके, देखेंगे हम लोग. C3H8, C3H8, C3 एंड H8 के लिए. ओके, डायरेक्टली आप बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो क्या? चेक करो उसको. ड्रॉ कर सकते हो क्या? कार्बन कार्बन कार्बन. ओके, C3H8 is a propane. Okay, this is propane. ड्रॉ कर सकते हो क्या उसको? देखो, कार्बन कार्बन कार्बन. ओके, कार्बन कार्बन कार्बन. यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन. देखो, चेक करो. देखो, एक 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके कार्बन के और 1 2 ये देखो 1 1 हाइड्रोजन के. ओके, ये कार्बन के 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स. ये देखो एक लाइन की, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन. देखो, चेक करो, कार्बन के हो गए 1 2 3, हाइड्रोजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना? बैलेंस हो गया. तो ये डायरेक्टली क्या है? उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है. देखो हम लोगों ने कैसे निकाला इजीली. ओके, विदाउट ड्राइंग द डॉट स्ट्रक्चर, विदाउट ड्राइंग द डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर, हम लोगों ने देखो C3H8 डायरेक्ट प्रोपेन का डायरेक्टली हमने क्या किया? बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसमें? सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड मींस व्हाट? क्या है ये? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड. समझ में आया सब लोगों को? आप लोगों को इसका इसका डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है. ओके, और मुझे दिखाना है. So can you draw the structure of the propane which has a molecular formula C3H8 in a similar manner? Yes, हम लोगों ने draw कर लिया है. You will see that the valencies of all the atoms are satisfied by the single bond between them. आप देख सकते हो उनमें जो bond form हो रहा है वो क्या है? Single bond form हो रहा है. These compounds are normally not very reactive. ये जो compounds होते हैं, okay, ये जो compounds होते हैं, they are normally not reactive. ज़्यादा reactive नहीं होते. ओके, ये जो कंपाउंड्स है, क्योंकि इनके साथ पेयरिंग हो गया है, पेयरिंग होने के बाद इनका अपडेट कंप्लीट हो गया है और इसके कारण ये ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते. ओके, ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते दूसरे मॉलिक्यूल के साथ. ओके, so however another compound of carbon and hydrogen has the formula C2H6 and is called ethene. Okay, C2H6 उसको बोलते हैं ethene. How can this molecule be depicted? We follow the same step. Okay, C2H4, C2H4 ethene. ethene के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे. ethane के लिए ड्रॉ करना. देखो, C2H6 is ethane. Right now C2H4 is ethene. Okay, तो ये भी देखेंगे हम लोग. ethane C2H6. now ethene के लिए ड्रॉ करेंगे हम लोग C2H4. So C2H4, that is ethene. Okay. So ethene के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे C2H4 ethene. तो हम लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट ड्राइंग इट्स डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर. कार्बन के कितने हैं? 1 1. ओके, कार्बन के कितने हैं? 1 1. ओके, ये इसके साथ हम लोग एक काम करते हैं, इसको डॉट स्ट्रक्चर से पहले ड्रॉ करते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, ethene का हम लोग डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ओके, डॉट या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. ओके, तो कार्बन, ये देखो एक कार्बन और एक दूसरा कार्बन. ओके, कितने नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. देखो कार्बन के कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट सिस्टम. ओके, हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है. कहां पे बॉन्ड कर सकते हैं हम लोग? ये देखो, यहां से एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं हम लोग. देखो, ये है उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये है उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये है इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये है इसका इलेक्ट्रॉन. देखो पेयरिंग हम लोग इसको पहले दिखा लेते हैं. हाइड्रोजन ने पेयरिंग फॉर्म कर लिया यहां पे.
बराबर है। अभी देखो कार्बन को क्या करना पड़ेगा, कार्बन को क्या करना पड़ेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन विल हैव टू पेयर विद अनदर कार्बन होने वाला है, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन किसको शेयर कर रहा है, ये कार्बन का हो गया, चेक करो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये भी कार्बन क्या कर रहा है, ये इसके जो है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेयर कर रहा है, तो देख लो ओके, हो गया फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, डायरेक्टली बॉन्ड इसको जो जो बॉन्ड ये फॉर्म कर रहा है उसको हम लोग लिखते हैं कार्बन एंड कार्बन, इन दो कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, ये अभी ये एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो कार्बन कार्बन इज फॉर्मिंग a two bond, okay, the double bond it is forming, so how can these molecules be depicted, we will follow the same step, each carbon, okay, so we have seen that the structure, okay, so the electron dot structure हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, so yes, क्या है ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, is forming a double bond form कर रहा है, क्या है ये, it is unsaturated carbon compound, unsaturated carbon compound, unsaturated carbon compound, so saturated and unsaturated it is purely between a formation of bond, अगर ये सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, ओके, अभी ये डबल बॉन्ड फॉर्म किया उसने कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये क्या है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, तो देखा हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स, ओके, और भी एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, ओके, और भी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे इसके हम लोग, टुमारो विल सी द एग्जांपल्स, ओके।